Hello and welcome to the Banking Interviews channel of Knowledgeist. This is a backup channel, and today's session is also a backup session of our earlier session in our main channel Knowledgeist. Many of you know that session was got interrupted due to some technical glitch at our end. And we are uploading this video so that in a quick manner you will revise all that top MCQs for your RRB 2022 exam, and hopefully most of you are new to this channel as this is the backup channel of Knowledgeist. So do subscribe so that you don't miss any big update in this channel. This channel is also dedicated for interview preparation and banking news updates. Daily morning at 7 a.m. you get the banking dose of the day in this channel. So without wasting our time, let's start the preparation of let's discuss about the MCQs, top MCQs. And we have followed a specific manner while preparing this kind of MCQs. As you know that we have a 6 plus member team of faculties and 15 plus member team of uh, previous year qualified students who are continuously working or doing research on the contents or for the upcoming RRB Scale 2 Scale 3 exam, as it is one of our flagship exams. So let's see what we have to offer to you in this MCQ series. And let's start the success journey of RRB Scale 2 Scale 3 with the expertise of Knowledgeist. We offer you dedicated courses for Scale 2 Scale 3. As we are different, so are our courses. And we urge students, if you find someone better than us, kindly join them, because we looking forward for maximum selections in it, and we are being claimed number one by the students who are being with us. So if you find someone is better than us, then definitely you must join. If not, then you have these two course options. If there is no one else who can match with our expertise and contents, then you have RRB Scale 2 Focus Batch and RRB Scale 3 Prime Batch. You can join any day in a month of April. Okay. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स. एंड बिफोर आई आस्क द क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन पूछने से पहले आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है अपकमिंग क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है, पीएसएल के ऊपर आधारित है. सीबीओ बॉम सीबीआई एसओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था. और पीएसएल का जो लिमिट है एनडब्ल्यूआर नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट ईएनडब्ल्यूआर के ऊपर भी क्वेश्चन आया है. देखिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन तो आएगा नहीं. अगर लास्ट ईयर किसी एक्ट किसी स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन आया था तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसी वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है. तो हम आईबीपीएस के क्वेश्चन बैंक में क्या पॉसिबल अदर क्वेश्चंस हो सकते हैं एक टॉपिक को लेकर, उसी में डिस्कस करना चाहते हैं. तो ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर. बैंक क्रेडिट फॉर ऑन लेंडिंग एनबीएफसीज फॉर टर्म लेंडिंग कंपोनेंट अप टू रुपीज डैश अमाउंट फॉर बोरोवर अंडर एग्रीकल्चर विल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर. ऑन लेंडिंग के ऊपर भी रिसेंटली क्वेश्चन आ चुका है. और ये कोविड के बाद एनबीएफसी का एसेट मैनेजमेंट एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट हैम्पर हुआ है, इसीलिए ऑन लेंडिंग बहुत ज़रूरी है. ऑन लेंडिंग को अभी पीएसएल में भी ऐड किया गया है. पीएसएल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरआरबी के लिए. बहुत सारे चीज़ों को फैक्टरिंग करके हमने ये क्वेश्चन आपके लिए हमने ये क्वेश्चन बनाया है. आपके ऑप्शंस हैं 30 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs, 30 लाख. तो इस लेवल पर हमारा रिसर्च चल रहा है. वी आर डूइंग रिसर्च इन दीज लेवल्स. We are not conducting any banking class for scale 2 scale 3 in our inside class. We are focusing more on quant reasoning english etc. क्योंकि नए स्टडी मटेरियल नए कंटेंट्स अपडेट हो रहे हैं, इसीलिए हम पूरा अप्रैल का महीना रिसर्च करने में लगाएंगे. और मई के बाद जो कंटेंट आपके पास बैंकिंग में आएगा दैट विल बी मोर देन एनफ टू क्रैक योर एग्जाम्स. और जो भी एक्सेस क्वेश्चंस हैं वो हम डिलीट करेंगे. आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 lakhs. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आज पर डायरेक्शंस ऑफ एमएफ डीएफएस एमओएफ ऑल एजुकेशन लोन प्रपोजल शुड बी रूटेड थ्रू VLP विद्या लक्ष्मी पोर्टल एंड एप्लीकेशन इन VLP शुड नॉट बी पेंडिंग फॉर मोर देन हाउ मेनी डेज. तो डीएफएस और एमओएफ के द्वारा जारी किया गया नियम के अनुसार
जो भी एजुकेशन लोन है वो VLP के थ्रू ही रूट होगा, विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू। और विद्या लक्ष्मी पोर्टल में कोई भी केस कितने दिन से ज़्यादा दिन तक पेंडिंग नहीं होना चाहिए, 2 दिन, 7 दिन, 14 दिन या फिर 30 दिन। सही आंसर आप दीजिए, तब तक मैं बताता हूँ कि इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। एजुकेशन लोन के ऊपर 2020 में एक क्वेश्चन था, 2019 में एक क्वेश्चन था, 19 में स्केल 2 में क्वेश्चन था, IBA के स्केल 19 में स्केल 3 के ऊपर क्वेश्चन था, IBA का मॉडल एजुकेशन लोन का लिमिट क्या है। तब डोमेस्टिक में 10 लाख और अब्रॉड 20 लाख था। बाद में दोनों अब्रॉड और डोमेस्टिक मिला के 20 लाख हो गया था। और RRB 2020 स्केल 2 में भी एजुकेशन लोन लिमिट के ऊपर बात हुआ था, इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये एजुकेशन लोन का क्रेडिट गारंटी स्कीम है, PSL में भी आता है, इसीलिए एजुकेशन लोन के रिलेटेड एक क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसका आंसर है 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी। और विद्या लक्ष्मी पोर्टल क्या है? DFS, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और IBA के द्वारा मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, एक पोर्टल डेवलप किया गया है। और उस पोर्टल को डेवलप किया है प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फॉर्मरली नोन एज NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, तो उसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजी लिमिटेड क्या है? पहले NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इसका नाम था। एक डिपोजिटरी के रूप में 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। डिपोजिटरी एक रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी होता है जो कि सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड कीपिंग करता है, उस तरह से है। और कुछ ई गवर्नेंस जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जिसमें प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजी ने काम किया है वो है 3: CRA नेशनल पेंशन सिस्टम, GST पायलट प्रोजेक्ट, NPS रजिस्ट्रेशन ऑफ EKYC एटसेट्रा, इस पर काम किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेटर G स्टैंड्स फॉर द एक्रोनिम ऑफ NGFS? तो ये स्केल 2 2021 GBO में ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट हमने आज इट इज रखा है। उस टाइम ये क्वेश्चन इसलिए आया था कि 2020 में RBI ने ज्वाइन किया था NGFS, तो इसीलिए एक करंट इशू था और करंट इशू रिलेटेड ये एक स्टैटिक क्वेश्चन था। और इसी आधार पर ही हमारा क्वेश्चन बन रहा है। जो करंट इशू 1 साल में हुआ है, 1 या 1.5 साल में, उसके रिलेटेड जितने भी पॉसिबल स्टैटिक करंट MCQ हो सकते हैं उस सब के ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है A फॉर ग्रीन, B फॉर ग्रीनिंग, C फॉर गवर्नमेंट, D फॉर गारंटी। तो NGFS का सही आंसर क्या है? NGFS में G किसके लिए स्टैंड करता है? G फॉर ग्रीनिंग। इसका नाम है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। ये वन प्लैनेट समिट पेरिस में दिसंबर 2017 के तहत इसको अडॉप्ट किया गया था। इसमें दिस इज नेटवर्क फॉर सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स फॉर द ग्रीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। आजकल ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ग्रीन फाइनेंसिंग दो तरह के हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, बैंक इन्वेस्ट करता है, उसको ग्रीनिंग भी कहा जाएगा। और ऐसे टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हो जिससे पेपर का खपत कम हो, बहुत कम पेपर यूज हो, क्लाइमेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स भी अचीव हो, कार्बन फुटप्रिंट कम हो। ठीक है, तो और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है इसको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ग्रीन बॉन्ड का सेल है वो 2.36 ट्रिलियन 2023 तक पहुंचने वाला है। ठीक है, और ग्रीन बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स जो स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करता है क्लाइमेट चेंज और या फिर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे प्रोडक्ट में। ठीक है, green finance is any structured financial activity that is been created to ensure a better environmental outcome. So this is for NGFS। और ये एजुकेशन लोन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑल एलिजिबल एजुकेशन लोन्स अप टू रुपीज डैश शैल बी कवर्ड अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम ऑन एजुकेशन लोन CGFSEL। आपने हमारा क्रेडिट गारंटी स्कीम का वीडियो देखा होगा, उसमें हमने CGTMSE का जितने भी क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं उसको कवर किया है, MCQ डिस्कस किया है। उसमें और भी 60-70 MCQs आ रहे हैं। और जो क्रेडिट गारंटी है उसको दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी ओवरलुक करता है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी देखता है, और उसको बोलते हैं नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कॉर्पोरेशन, NCGTC। and under NCGTC the CGFSEL comes into effect and your options are 7.5 lakhs,
10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs. And you are watching this video in our dedicated backup channel, that is banking interview channel. And every morning at 7 a.m. you get the banking dose. And most of you probably new to this platform, new to this specific channel, as you are watching regular videos in our main channel, that is Knowledgeist. So I will urge every one of you, kindly subscribe to this new channel also, right? Because our first session was missed, so we took this session. And the answer for this question is 7.5 lakhs. 7.5 लाख तक अमाउंट CGFSEL गारंटी करता है, गारंटी कवरेज देता है। और RRB स्केल 3 2020 में, IBA मॉडल 2020 नहीं 2019 ही एक्चुअली है, 2020 में स्केल 2 में आया था, 2019 में स्केल 3 में आया था। IBA मॉडल एजुकेशन लोन का सीलिंग जो अभी 20 लाख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर ECLGS 3.0 एक्सटेंशन लोन टेनर कितना होता है और मोराटोरियम पीरियड कितना होता है। आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, बट क्वेश्चन का एसेंस यही है, व्हाट इज द लोन टेनर अंडर ECLGS 3.0 एंड 3.0 एक्सटेंशन, एंड व्हाट इज द मोराटोरियम पीरियड। आप मुझे ECLGS का फुल फॉर्म कमेंट में बताइए। और ECLGS 4.0 अभी चल रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है, 3.0 से भी क्वेश्चन आ सकता है, 4.0 से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा दूंगा कि सबका मोराटोरियम और टेनर ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे। और ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर है, 5 साल 1 साल, 6 साल 1 साल, 6 साल 2 साल, 5 साल 2 साल। इसका राइट आंसर है 6 साल 2 साल। लोन अमाउंट, लोन जो रिस्ट्रक्चरिंग होगा उसमें 6 साल के लिए होगा, और उसका मोराटोरियम पीरियड 2 साल के लिए होगा। ये कोविड इफेक्टेड सेक्टर के लिए एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च किया गया है। और ये जो स्कीम है, दिस इज अंडर आप मुझे इसका भी आंसर दीजिए। ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है, ये CGTMSE में आता है, CGTMSE में आता है, या फिर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। मैं भी बता देता हूँ, NCGTC के अंडर ये आता है। और जो मोराटोरियम है, वो मोराटोरियम 1 साल के लिए है ECLGS 1 एंड ECLGS 2 में। 6 महीने का मोराटोरियम है ECLGS 4 में। तो 2 साल का मोराटोरियम होता है ECLGS 3.0 और 3.0 एक्सटेंशन में 4 साल के लिए होता है, ठीक है। चलिए, an account under Sukanya Samriddhi account can be opened with deposit of dash amount and can be deposited up to what amount during a financial year। स्मॉल सेविंग स्कीम से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है हर एक एग्जाम में। तो लास्ट ईयर 2021 स्केल 2 में सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट के बारे में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए इस साल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका मिनिमम अमाउंट क्या है, आप ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप हमें इसका आंसर दीजिए। और अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.6 का चल रहा है, ठीक है। और इसका सही आंसर है 250 और मैक्सिमम 1.5 लाख 1.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुकन्या समृद्धि अकाउंट में बी ओपन्ड बाय वन ऑफ द गार्डियन इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड दैट यू ऑल नो, हु हैज नॉट अटेंडेड द एज ऑफ हाउ मेनी इयर्स एज ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए खोलते हैं, गर्ल चाइल्ड के लिए खोलते हैं, नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो कितने साल का गर्ल चाइल्ड होना चाहिए जिसके लिए अकाउंट खोला जाएगा, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 18 साल। और इसका सही जवाब है 10 साल। बहुत ही क्विकली जा रहे हैं क्योंकि ये रिपीट सेशन है, मेरे पास भी टाइम कम है। स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर हमने इसको बैकअप चैनल में चलाया है। डिपॉजिट्स कैन बी मेड इन द सुकन्या समृद्धि अकाउंट टिल द कंप्लीशन पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स। अकाउंट ओपनिंग के डेट से कितने साल तक जो अकाउंट है इसको एक्टिव रखा जाएगा या फिर डिपॉजिट किया जाएगा, ठीक है। डिपॉजिट कितने सालों तक किया जाएगा एक्टिव अकाउंट ओपन होने के लिए। टेलीग्राम लिंक सब कुछ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन पर, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डेडिकेटेड टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वन शॉट लिंक अवेलेबल है knowledgeist.in/RRB। और जितना रिसर्च हम यहाँ पर कर रहे हैं RRB को लेके, कहीं और किसी भी जगह पे ऐसा नहीं होता है। एंड आई विल urge all of you to give your best। चलिए, and more than 1000 students have started preparation of RRB with Knowledgeist, so don't wait and don't give your competitors
द एडवांटेज ऑफ बीइंग एन अर्ली बर्ड, तो 15 साल तक अकाउंट ओपन अकाउंट ओपन के 15 साल तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पिछला ये है सुकन्या समृद्धि, मैंने तो बताया था स्मॉल सेविंग स्कीम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन है। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में बी ओपन बाय वन ऑफ द गार्डियन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड हु वाज नॉट अटेंडेड द एज ऑफ 10 ईयर्स, ये तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। डिपॉजिट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004 SCSS में बी मेड इन कैश इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज अप टू रुपीज 0.5 lakh, 1 lakh, 1.5 lakh, can can't be cannot be opened in cash, it will be opened with check or online deposit। तो इसका क्या आंसर है? और ये क्वेश्चन हमने क्यों पूछा आपको, स्केल 2 2019 में मैक्सिमम अमाउंट इन पीपीएफ आया था, तो स्मॉल सेविंग स्कीम का ही क्वेश्चन है। मे भी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से भी आ सकता है, क्योंकि ये भी एक स्मॉल सेविंग स्कीम ही है। Revised upper limit of IMPS through branches for P2A, person to account type of transactions only has enhanced, and the limit is up to 5 lakhs. You got the answers. Today we are running with lot of technical glitch that can be forgiven, because we are preparing new model questions, new model PPTs, new model content. Okay, so it is 5 lakh. Also, this question was asked recently in IDBI promotion exam 2022. The exam conducting authority is same, IBPS, and from digital banking, every year questions are being asked in RRB. Okay, so under which section of the RBI Act, under which section of the RBI Act 1934 and dash of Banking Regulation Act, bank can issue guidelines and instructions for realizing the objectives of the clean note policy. It is section 45 and section 35A. Okay, section 35A of Banking Regulation Act and section 45 of RBI Act. Clear? The exchange of soiled notes over the counter at bank branches, banks are eligible for financial incentives at rupees dash per packet for exchange of soiled notes up to the denomination of rupees 50. Oh, again the answers. Uh, I think our backend has messed it up. So it is up to rupees 2 per denomination up to rupees 50. Okay. Per packet, the incentive is rupees 2. And this question is being asked in scale to 2021 on incentive on coins, and in 2019 GBO question on currency management was being asked. So questions from currency management is a part of IBPS RRB syllabus, which we conclude finally. Okay, we'll not run through other slides today owing to the mistakes. Clear? So we'll come up with the new slides, new MCQs on this. Forgive us for today's some technical glitch. And yes, do join your regular class there in the internal sessions inside. And the new contents are being prepared, all the, because what happened last year, they asked maximum questions from the last 1 year current banking. Even if static questions were asked, that was related to the current developments or things that are related to the current banking, like NGFS. RBI joined the NGFS last in 2021. Okay, sorry, in 2020. So that's why they asked this question in 2021, but they asked the static part, what G stands in NGFS. So that's why we are changing everything that is with us, all the contents, all the MCQs, everything is being changed. So this month we are dedicating for RRB content changes, revamp of new content. So focus on the internal classes, and all the PDFs, new PDFs will be uploaded by the May end in RRB scale 2 or scale 3 separate folder. Thank you. Top class MCQs, PDFs, why we are not sharing? Because these 10-15s are not limited. On each segment, at least 200 to 300 MCQs are being prepared. Like CGTMSC, we are preparing MCQs on NCGC, on National Credit Guarantee Trust Corporation. So everything will be compiled under one PDF, and it will be taken in this
Similar sessions will be taken internally too. I will be taking classes. Praveen sir will be taking classes. Now we are doing zero classes on banking for the month of May. In the month of May, we will focus more on quant reasoning, English and Hindi. And sorry, in April and in May, first week or second week, we will start banking. Clear? एमसीक्यू आप टॉप 100 एमसीक्यू में देखिए, टॉप 100 एमसीक्यू का जो सीरीज है उसमें ऑलमोस्ट 1000 एमसीक्यूज आर अपलोडेड. ठीक है, क्लियर. और टॉप 100 एमसीक्यू का भी मैं इंटरनल जो है प्रिंटेबल फॉर्मेट बुक वो भी बहुत जल्द अवेलेबल करवा दिया जाएगा. जिन लोगों को चाहिए इंटरनली उनको लिंक मिलेगा. दे कैन गेट इट एट द प्राइस ऑफ एट द प्रिंटिंग प्राइस ओनली. मैथ फॉर्मूला पीडीएफ सर को बोलेंगे. एक वर्कबुक हमने लास्ट वीक शेयर किया था, वर्कबुक फॉर्मेट में अभी शेयर किया जाएगा. ठीक है, इट विल बी अपलोडेड, डोंट वरी. या टॉप 100 एमसीक्यूज यू कैन रिवाइज. टॉप 100 एमसीक्यू में भी नया एमसीक्यू अपलोड हो रहा है जो आउटडेटेड. देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें नॉट इंपॉर्टेंट है. जैसे टॉप 100 एमसीक्यूज हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देख के कुछ बनाया था, तो अभी आरआरबी को देखते हुए प्रीवियस 5 साल का पैटर्न, एसबीआई सीबीओ का पैटर्न, बॉम का पैटर्न, सबको देखते हुए हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं. तो आप निश्चिंत रहिए, आपको नया पैटर्न में क्वेश्चन मिलेगा. आई अप्रिशिएट टुडेज एमसीक्यू मंजू, बट हमारे साइड से थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था नए सॉफ्टवेयर के वजह से, बट वी विल कम अप विथ मोर इन दिस लिस्ट. बॉम रिजल्ट्स 20 दिन में नॉर्मली आता है. ठीक है, और मैं बार बार भी कांटेक्ट नहीं करना चाहता क्योंकि दैट इज़ नॉट गुड. आपको बॉम बहुत जल्दी रिजल्ट दे देगा, डोंट वरी. ये वीक तो छुट्टी वाला वीक था, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक जब आएगा तब आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं होगा. आप बैंकिंग के नॉलेज बढ़ाइए, फिर हम मॉक इंटरव्यू शुरू करेंगे रिजल्ट आते ही. ठीक है, क्लियर. Thank you once again for joining us. With so much of technical glitch, you were being with us, so I thank everyone for your kind support.